ओके ओके, थैंक यू। तो देखो, तो यहाँ पे 2 अल्फा इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dx by dt, राइट, इंटू dx by dt। आई एम कीपिंग दैट सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म ऐसी रख के सेकंड टर्म का डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर, प्लस बीटा इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही है फंक्शन, बीटा कांस्टेंट है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या आता, 0 इक्वल्स टू 2 अल्फा dx by dt इंटू dx by dt क्या आता, v स्क्वायर प्लस x इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन होता, प्लस बीटा इंटू एक्सेलरेशन होता, राइट। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो if you rearrange this, if I'll send v to that side, which side, to the other side, okay, I'll write one more step, 0 equal to 2 alpha v square plus 2 alpha xa plus beta a. If I send minus 2 alpha v square that side, I'll get a common here, right, into 2 alpha plus beta I'll get, right. So what is a equal to, tell me, minus 2 alpha v square by 2 alpha plus beta, but we already know that 1 by 2 alpha x plus beta, 2 alpha x plus beta, but we already know that 2 alpha x plus beta is 1 by v. Here 2 alpha x plus beta will be 1 by v. So 1 by 2 alpha x plus beta will be v. So this acceleration is how much? A is equal to minus 2 alpha v cube. If acceleration is minus 2 alpha v cube, then retardation is plus 2 alpha v cube, right? So your answer is plus 2 alpha v cube. So first option is correct. Okay, fine. Okay, next, velocity time graph for a body projected vertically upward will be 30, question number 30. Velocity time graph for a, no, first see what is that velocity time graph. So write the equation. What is v equal to? It is u minus dt. Okay, so you are graphing this on y axis, this on, no, this on x axis. So this is like y is equal to mx plus c. This graph is like y is equal to mx plus c, because u is constant, which is like c, and minus g is like m. So y is equal to mx plus c. It is a straight line. Okay, it is a straight line. In fact, if I draw the graph, I'll get this. See. So if I draw the graph, if this is y axis, this is y axis, this is x axis. On x axis, I'm taking time. So this is time. So here we have time. Here we have v. So in fact, the graph will be something like this. I'll show you. Graph will be like this. Okay. This will be u. This value will be u, and it will become 0. And actually, when it goes to highest point, again the graph will come like this. Okay. Again it will rebound if it rebounds suddenly. No. I'll show you. The graph will be. No. I'll show you. Actually, graph ऐसा रहता. Because while coming back, velocity will be negative. And suddenly, after this point, the graph will be like this. You know why? Rebound करता. समझ में आया? थोड़ा हटाना बाजू. तो यहाँ पे rebound करता मतलब देखो, initially 10 meter per second से suppose you throw it 10 meter per second initially, 9 होता,
8 होता, 7 6 5 4 3 2 1 0 हो जाता। 0 होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, वेलोसिटी 0 थी, अब नीचे डायरेक्शन में आती, नेगेटिव वेलोसिटी आती, ठीक है। फिर वापिस आ गया, कितने से आया, 10 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पे आता। जैसे ग्राउंड पे आता रिबाउंड करता, रिबाउंड मतलब हाँ कोलिजन होके वापिस आता, तो सडनली -10 से जाके +10 हो जाती वेलोसिटी। तो एक्चुअली ये ग्राफ कंटिन्यू होता अगर इलास्टिक रहा तो। इनइलास्टिक रहा तो क्या होता मालूम, वेलोसिटी कम होते जाती, ये ग्राफ भी छोटा होते जाता। क्लियर, ये जिगजैग ग्राफ जो है ना, साइज छोटा 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 होते हुए कम हो जाता, समझ गए? ओके, एनीवे it will be a straight line. Okay, now particle is thrown vertically up, its velocity at half of the height is 10 meters per second. Then what is maximum height बोल रहा, ठीक है। at half of the height velocity 10 meter per second है, maximum height पे क्या रहता, तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स से भी कर सकते, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 31st प्रॉब्लम, अगर 31st प्रॉब्लम देखे तो 31st प्रॉब्लम कैसा कर सकते हैं, देखो। एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट v इज कितना बोला, अच्छा कॉपी कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन था ना, ओके हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है। No, particle is thrown vertically up, its velocity at half of maximum height is 10 meters per second. Then the maximum height attained is, okay. हाँ 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 कर सकते हैं वैसा भी, बट और आसान तरीका है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ये है ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल रहते, राइट? क्योंकि ऊपर से नीचे जब गिरते हाफ हाइट पे आधी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती, वो आधी पूरी जो है ना काइनेटिक बन जाती, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रहती। यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे 2p रहता, k 0 रहता, समझ गए? यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे इस हाइट पे, ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती, mgh/2, mg कैपिटल h लेंगे, ठीक है, कैपिटल h मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना, हाफ mv², mm चले गया तो 10 इंटू h/2, 10 इंटू h/2 इज इक्वल टू हाफ 10², तो 10 इंटू 10, करेक्ट? तो ये 2 चला गया, 10 चला गया, तो h इज इक्वल टू क्या है, 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 10 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे h/2 था ना हाइट, तो मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। कौन सा वाला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g है, राइट? वैसा भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। मैक्सिमम हाइट का u²/2g, बट वी डोंट नो व्हाट u इज, तो उसके लिए हम लोगों को जो गिवन डेटा है उससे u निकालना पड़ता। तो क्या करते हैं, देखो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो आप क्या करते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2a h/2, समझ गए? 2a s, ठीक है, मैं पूरा लिखता हूँ 2a s। तो v² क्या है, 10² माइनस u² इज इक्वल टू 2 माइनस g, क्योंकि g नीचे रहता, इंटू ये h/2 आता, करेक्ट? 2 कैंसिल, तो u² इज इक्वल टू, बोलो क्या होता, 10² प्लस gh, बात समझ में आई? हाँ सॉरी, 10² प्लस gh बराबर, ओके। क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मैक्सिमम हाइट अटेन, ओके। कौन सा बराबर ना, ओके। तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस इन अवर
फॉर्मूला h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कर सकते, मगर u स्क्वायर की जगह अपन 100 प्लस gh बाई 2g करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये उधर चले जाता तो 2gh इज इक्वल टू 100 प्लस gh होता, तो gh इज इक्वल टू 100 होता, तो इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 10। ऐसा भी कर सकते हैं, बट दिस विल बी इजी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी इजी। नेक्स्ट 31st वाला देखो, नहीं 31st वाला हो गया, 32nd वाला देखो, तो ग्राफ है तो कॉपी कर लेंगे। 31st वाला तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज, अच्छा क्या बोल रहा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन किधर है, पहले गौर करो, ये हिस्से में नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये हिस्से में नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 20 सेकंड्स टू 40 सेकंड, समझ गए, 20 सेकंड्स टू 40। व्हाई, बिकॉज 20 से पहले जीरो था, 40 के बाद भी जीरो है, ठीक है। तो वहां पे आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। कौन से पार्ट्स, ये रेक्टेंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल। तो बेस तो ट्रायंगल का क्या है, 20 से लेके 40 तक 20 है, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, देखो नो 3 है, हाइट यहां से लेके यहां तक 3 है, ये ट्रायंगल का हो गया। और रेक्टेंगल का 20 लेंथ है और 1 हाइट है, 1 हाइट है, राइट। 50 आंसर, ठीक है। सेकंड क्लिक, ठीक है। Okay, when a ball is thrown vertically up with velocity v0, it reaches maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इज वेरी इजी, डायरेक्टली आंसर बोल दे सकते। अच्छा उधर ही जूम कर देता हूँ। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v0, it reaches maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, √3 v0 लेना, क्योंकि u स्क्वायर बाई 2g होता ना फॉर्मूला, √3 कर दिया तो आपको स्क्वायर जब करते होल स्क्वायर कर देना, ये √3 v0 होल स्क्वायर बाई 2g कर देना, तो 3 बाहर आया, 3 v0 स्क्वायर बाई 2g आता, which is 3 into h is equal to h prime। बात समझ में आई, ओके क्लियर। ओके, a particle moves along straight line and equation is given as x equal to 40 plus 12t plus minus t cube. How long would it take for the particle before coming to rest? Coming to rest मतलब क्या, velocity zero है ना, velocity zero है ना, मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो होना। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, देखो velocity is equal to 40 का डेरिवेटिव जीरो है, 12 का क्या है, 12t का 12 है, माइनस 3t स्क्वायर, ये इक्वल टू जीरो कर दो, t इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ठीक है। तो +2 लेते हैं, तो 2 सेकेंड्स पे जो है ना क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, तो ये t इक्वल टू आपको, हाँ t इक्वल टू 2 जो आया वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आता, 40 प्लस 24 माइनस 8, 56 मीटर्स, समझ गए। Two bodies, A of 1 kg and B of 3 kg are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively.
टाइम टेकन का फॉर्मूला 2h/g है, याद है? तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता, राइट, क्योंकि h में कोई m आ रहा ही नहीं, तो 2h/g, तो 2h1/g पहला टाइम आता, 2h2/g दूसरा टाइम आता, और रेशियो निकालो तो क्या आता? √h2/h1, सॉरी √h1/h2. t is equal to √2gh, सॉरी रूट इज इक्वल टू √2h/g, ये वाला. तो g तो सेम रहता, तो t1/t2 क्या आता? √h1/h2 आता ना, 2 कैंसिल, g कैंसिल, तो √h1/h2 क्या आता? 4/5. तो आंसर ये है. ओके, नेक्स्ट 36 वाला देखो. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस विद एक्सेलरेशन f at t. ओके, f इज इक्वल टू f नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T दिया. यहाँ पे कैपिटल T कांस्टेंट है, स्मॉल t अपना टाइम है, ठीक है. f नॉट एंड t capital T are constants. If the particle at t equal to 0 has zero velocity, in the time interval between 0 and instant when f is 0, particle will have velocity बोल के बोल रहा. अच्छा मेरे को ये बोलो f 0 कब होता? तो ये कॉपी कर लेंगे. देखेंगे, वो तो डायरेक्टली मालूम हो जाता आपको. बोलो f इक्वल टू 0 डाले तो क्या आता? तो f इक्वल टू 0 डाले तो क्या आता? बोलो, f इक्वल टू है क्या? f नॉट इंटू 1 माइनस t बाय कैपिटल. हाँ वही, f इक्वल टू 0 implies 1 माइनस t बाई टी इक्वल टू 0 आता ना, तो t इक्वल टू t आ जाता, ठीक है. तो टाइम t पे जो है ना एक्सेलरेशन 0 होता, बट इज नॉट आस्किंग क्या टाइम पे, इन बोल रहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी. ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इन द टाइम इंटरवल. अच्छा यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा आपको या क्वेश्चन देख के? नहीं 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 नहीं, एक टाइम इंटरवल लिया. जब भी एक इंस्टेंट पे पूछता तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते, जब भी टाइम इंटरवल दे रहा तो समझ जाओ कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा. ठीक है, किसकी बात कर रहा? एवरेज वेलोसिटी. व्हेनेवर यू हैव टाइम इंटरवल यू अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी. अगर इन पूछता ना एट द इंस्टेंट व्हेन f इज 0 फाइंड द वेलोसिटी, तो मैं क्या करता था मालूम? v फाइंड कर दे के t सब्स्टिट्यूट कर देता था. मगर उन एट इंस्टेंट नहीं बोल रहा. देखो इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल बोला. ये जो टाइम इंटरवल वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि एवरेज की बात कर रहा. कब से लेके कब तक? t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक. समझ गए? तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होता फाइंड करना. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम तो t होता ना, डिवाइड कर दिया तो आपको आंसर आ जाता. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे हम लोग. क्या फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तो मैं पहले इसको लिखता हूँ dv बाई dt इज इक्वल टू f नॉट माइनस f नॉट इंटू t बाई टी, ऐसा करते हैं. ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है, इसको अपन सॉल्व करना है. ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, dv इज इक्वल टू f नॉट माइनस f नॉट बाई t इंटू t इंटू dt. समझ गए? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. वन का इंटीग्रल v आता, f नॉट कांस्टेंट है, f नॉट बाहर आ जाता, उसका t आता, वन का इंटीग्रल माइनस f नॉट बाई t इंटू t स्क्वायर बाई 2 आता, स्मॉल t स्क्वायर बाई 2 आता. लिमिट्स अगर डाल दिए 0 टू t तो आपको क्या आता? f नॉट कैपिटल T माइनस f नॉट कैपिटल T बाई 2. बराबर बराबर है ना? तो क्या आता बोलो? एक मिनट मैं आई डोंट वांट टू राइट दिस एज फंक्शन ऑफ यू नो. मेरे को ओवरऑल v नहीं, मेरे को v एज ए फंक्शन ऑफ t ही लिखना है. मेरे को v एज ए t लिखना है क्योंकि आई वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ना.
नहीं नहीं ऐसे ही रख दो, एफ नॉट इंटू टी माइनस 0 टू स्मॉल टी कर लो, 0 टू स्मॉल टी कर लो। तो क्या आता, एफ नॉट इंटू टी टी स्क्वायर बाय 2 ये आता बराबर। बट व्हाट इज v इक्वल टू ds बाई dt, ds बाई dt है ना, तो हम लोग करेंगे अभी ds इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट बाई 2t इंटू टी स्क्वायर इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आता है, ऐसे इक्वल टू एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ नॉट बाई 2t इंटू टी क्यूब बाई 3। तो आई थिंक ये अब हम लोग 0 टू कैपिटल टी करेंगे, 0 टू कैपिटल टी। तो क्या आता बोलो, आई थिंक एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 6, 1/2 माइनस 1/6 क्या आता, 1/2 माइनस 1/6 4/6 आता शायद। 1/2 माइनस 1/6 4/6 आता, 4/12 1/3 आता, राइट, 1/3 1/3 आता, राइट बराबर। यस सर। ओके ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई, टोटल टाइम क्या है टी, तो क्या हुआ भाई एफ नॉट टी बाई 3, ये है आंसर। क्लियर, देखो Yes, sir. ऑप्शंस में नहीं है। अच्छा ये करके देखो, वेलोसिटी एट टी, आंसर क्या दिया देखो एक बार इसका। नहीं 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 वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। नहीं नहीं ये जो है ना इंस्टेंटेनियस है, ठीक है इंस्टेंटेनियस है। हम लोग जो करें क्या था 1/3 एफ नॉट इंटू टी, ये क्या है एवरेज है। एक्चुअली कोई वर्ड लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस बोल के नहीं लिखा, क्या बोला इंटरवल बोला, तो एक्चुअली एवरेज निकालना चाहिए, मगर इन जो है ना इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करा एंड पक्का है वो 1/3 रहता, एवरेज एवरेज 1/3 ही रहता, ठीक है। तो आई थिंक वो वर्ड इंस्टेंट देके ये ऑप्शन दिया इन्हें, कौन सा एंड द इंस्टेंट बोल के, मगर इट इज एक्चुअली इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट है, इट इज नॉट के फाइंड द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट। और एक्चुअली एवरेज वर्ड यूज करना चाहिए एक्चुअली, करेक्ट, मतलब क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्विटी है, एक्चुअली करेक्ट आंसर ये है, ये इंस्टेंटेनियस पूछा तो, मगर ना तो इंस्टेंटेनियस बोल के दिया क्वेश्चन में, ना तो एवरेज दिया, मगर इंटरवल दिया, इसलिए मैं करा एवरेज, ठीक है। ओके एनीवे करने तो आ गया ना, ओके हाँ कौन सा ये वाला, टी का टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, समझ गए। तो अगर लिमिट्स डाल दिए तो 1/2 माइनस 1/6 आता, 1/2 माइनस 1/6 क्या आता 1/3 ना, 6 माइनस 2/12, 6 माइनस 2/12, 4/12, 4/12 मतलब 1/3। क्लियर, करेक्ट है, वो मालूम है, वो करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला देखें 37, position of a particle is given as some function of time where x is in meter and t is in seconds. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम स्पीड आ जब क्या रहता पूछ रहा, ठीक है। तो मेरे को ये बोलो व्हाट इज v, तो dx बाई dt इक्वल टू क्या था बोलो, ओके
और एक्सेलरेशन क्या आता, क्यों फाइंड कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, इसीलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि जब मैक्सिमम वेलोसिटी आती ना या मिनिमम वेलोसिटी आती, जब एक्सेलरेशन जीरो रहता, मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी जब आती, जब क्या रहता, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब जीरो रहता ना, जब मैक्सिमा या मिनिमा, समझ में आया, समझ गए, ये v आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये इक्वल टू जीरो जब करते हैं, t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स आता ना, ये टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा रहता, क्योंकि कोई भी ग्राफ देखो मैक्सिमा या मिनिमा पे उसका स्लोप जीरो रहता, देखे, इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव जहाँ जीरो रहता वहां पे या इधर मैक्सिमा रहता या तो मिनिमा रहता, मगर कभी कभी जो है ना मैक्सिमा भी नहीं रह सकता, मिनिमा भी नहीं रह सकता, यू डोंट वरी, वो मैथ्स वाले पढ़ते हो, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आता, देखे इसका स्लोप जीरो रहता यहाँ पे, बट ना इधर मैक्सिमा आता ना और मिनिमा आता वहां पे, समझ गए, तो एक्चुअली कैसा टेस्ट करते बोले तो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो जहाँ रहता वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता, तो एक्स आ जाती है, फॉर एग्जांपल दो है वैल्यूज, समझ गए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से क्या है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड से क्या है, दो सॉल्यूशंस आ रहे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया फॉर एग्जांपल, उसके दो सॉल्यूशन थे, तो उसके एक पे मैक्सिमा रहता, एक पे मिनिमा रहता, जो आंसर है ना 2 और 10 वो आप सेकंड डेरिवेटिव में डालना, सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू जब डालते नेगेटिव आए तो मैक्सिमा आता, पॉजिटिव आए तो मिनिमा आता, क्यों बोलो, देखो जब मैक्सिमा रहता ना स्लोप बढ़ रहा कम हो रहा, नहीं स्लोप कम हो रहा, और जब मिनिमा है स्लोप बढ़ रहा, राइट, स्लोप कम हो रहा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव जहाँ नेगेटिव आता वहां पे मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पॉजिटिव आता वहां पे मिनिमा, समझ गए, तो याद रखो जहां पे भी डेरिवेटिव जीरो रहता वहां पे या तो मैक्सिमा आता या तो मिनिमा आता, अब कभी प्रॉब्लम में एक ही आंसर आया तो ब्लाइंडली डाल देना वही जो भी है मैक्सिमा या मिनिमा है, अगर दो आ रहे आंसर तो और एक डेरिवेटिव निकालना, और एक डेरिवेटिव निकाल के जो आंसर आया था ना वो सब्स्टिट्यूट करके देखना, वो अगर नेगेटिव आ रहा उधर तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमा, और अगर जीरो आ रहा तो नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसा, समझ गए, मैथ्स में रहता है, एमपीसी वालों को रहता, खैर एनीवे, तो एनीवे देखो यहाँ पे अपने को तो एक ही है ना, वी नीड नॉट वरी, खाली मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर किधर वेलोसिटी में, तो क्या था बोलो 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो 18 इंटू 3 क्या था, 18 3 54 54. 27, तो आई थिंक 27 है आंसर, ठीक है, क्या पूछा उन्हें, अच्छा व्हाट विल बी द पोजीशन बोल रहा, व्हाट विल बी द पोजीशन मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो बोलो x इक्वल टू 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, 81 माइनस 27, आई थिंक 54 आता शायद, राइट, 81 माइनस 27 54 आता, क्योंकि 9 9 81 9 3 27, तो 9 माइनस 3 6, तो 9 6 54 बराबर, ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन थर्ड सेकंड, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, कौन सा फार्मूला, u प्लस ए एन माइनस हाफ, कल बोला था u प्लस ए एन माइनस हाफ, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है ये, कौन सा, ना चलता हम लोग देखेंगे बाद में, तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस हाफ, और इनफैक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे दिया, तो एस एन क्या होता 4/3, कौन सा सेकंड, थर्ड सेकंड ना, तो क्या होता 4/3, आई थिंक 7/2 आता, नहीं 5/2 आता, राइट, तो 5 to 10 10/3, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कहाँ है वो 38, 39, a particle moves in a straight line with a constant acceleration, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t seconds, ये प्रॉब्लम भी इजी है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन बोल लिया, यूनिफॉर्म मोशन मतलब अपने जो तीन फॉर्मूले हैं वो वैलिड है, ठीक है, कौन से तीन फॉर्मूले,
तो ये a particle moves in a straight line with constant acceleration. Its velocity changes. It changes its velocity from 10 to 20. So u is equal to 10, v is equal to 20, while passing through a distance of 135. तो पूरे SI यूनिट्स में दिया. हाँ ओके, मगर क्या बोल रहा हूँ, इन t सेकेंड्स. नहीं नहीं, एक्चुअली दो इक्वेशंस यूज करना, फर्स्ट यूज करना, थर्ड यूज करना, मगर मैं एक्चुअली उससे बेटर मेथड बोलता हूँ. वो दो इक्वेशंस कहाँ से आए वो यूज करता हूँ मैं. कहाँ से आए मालूम? एवरेज वेलोसिटी से आए. एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट आता. अग्री? तो यहाँ पे v क्या दिया 20, u क्या दिया 10 बाई 2 इंटू टाइम फाइंड करना है, इज इक्वल टू 135. तो 15 इंटू t इज इक्वल टू 135. तो 15 नाइन्स ना, तो आंसर इज 9. देखो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. कब? ओनली इन यूनिफॉर्म मोशन. ओनली इन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म में वैसा नहीं होता. मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी चीज यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही ना, फॉर एग्जांपल एक क्लास में मार्क्स, एक बच्चे को 1 मार्क, एक बच्चे को 2 मार्क, और 100 स्टूडेंट को 100 मार्क्स आए, तो क्लास का एवरेज क्या निकलता मालूम? फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क प्लस लास्ट स्टूडेंट का मार्क डिवाइडेड बाई 2. तो क्या आता मालूम? 101/2 50.5 आता एवरेज मार्क. मगर अगर रैंडम है क्लास में मार्क्स, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट लोएस्ट स्टूडेंट का मार्क हाईएस्ट स्टूडेंट का मार्क डिवाइड बाय 2 करे तो नहीं आता आपको. क्यों? फॉर एग्जांपल क्लास में सबको 1 मार्क है, एक ही बच्चे को 100 आया, तो एवरेज 1 के करीब रहता, बीच में थोड़ी ना रहता. समझ गया? तो क्या 1 प्लस 100/2 करे तो एवरेज आधा नहीं आता. अच्छा, वो क्यों है मालूम? लोएस्ट स्टूडेंट प्लस हाईएस्ट स्टूडेंट बाई 2. फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n मार्क्स है, तो ये टोटल कितना आता है? n इंटू n प्लस 1/2. मालूम ना? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते, बाई n करे, यहाँ पे भी n कर दिया, n कर गया, तो 1 प्लस n/2 आ गया. तो आ गया लोएस्ट मार्क प्लस हाईएस्ट मार्क बाई 2. ये कब होता मालूम? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहे तो वैल्यूज. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जब जो है ना एवरेज जो है ना लोएस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते. ठीक है? कौन सा था प्रॉब्लम? वो 39 आ गया भाई. 40 वाला जल्दी बोलो मेरे को देख के. 40 वाला, ए पार्टिकल मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया. द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अराउंड पॉइंट. क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी? स्लोप. स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा, स्लोप कम रहे तो वेलोसिटी कम. तो देखो, नहीं सी नहीं, बी पे आता. बी ज्यादा क्या है? हाँ, स्लोप ज्यादा है बी पे, थोड़ा गौर करो. ऐसा है बी पे. सी पे जो है ना थोड़ा, एक्चुअली दो इक्वल लिख रहे मेरे. आंसर क्या दिया? एक्चुअली ऐसा देना था ग्राफ जब बोलते थे. खैर एनीवे, अब समझ जाना साइकोलॉजिकली. बी क्यों बोलो? क्योंकि एक बात बोलो, बी और सी इक्वल लिख रहे मेरे को. सी दिया वही मेरे को, बी और सी इक्वल लिख रहे. इनफैक्ट सही नहीं है क्वेश्चन, मतलब क्लैरिटी नहीं है इसमें. हाँ, स्लाइड चेंज है. मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज बी और सी. इंस्टेंटेनियस ही होता ना. Yes, sir. तो मेरे को ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा अनफॉर्चुनेटली, बट इन एग्जाम ही वोंट गिव यू लाइक दिस क्लियरली. सी का थोड़ा ज्यादा दिख रहा, एग्जाम में जो है ना पूरा ड्रास्टिकली दिखे जैसा देता. ठीक है? ए और डी तो ऑब्वियसली नहीं है आंसर्स, बी या सी है. और एक बात बोलूं, बी और सी के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ये जो ग्राफ है कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा उधर. समझ गए? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से दूर भी है, सी थोड़ा करीब दिख रहा मेरे को.
सर ये अपन स्लोप इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो आज भी देखे अपन वैसे तो कंस्ट्रक्ट करे थे उसको स्लोप इक्विवेलेंट ना बोल के कहाँ पे? आज क्लास में स्लोप इक्विवेलेंट नहीं, स्लोप इक्वल एग्जैक्टली ये पॉइंट पे रहते, वो छोड़ दो। यहाँ से जब जाते रहते स्लोप कम होता, यहाँ से जब जाते रहते स्लोप कम होता। मेरा लॉजिक ये है, मेरा लॉजिक ये है, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, उससे सी करीब दिख रहा मेरे को, ठीक है। एक्चुअली ये पूरे ग्राफ में ये पॉइंट का स्लोप हाईएस्ट रहता, क्लियर। वो जो हाईएस्ट स्लोप से करीब थोड़ा सी दिख रहा, मगर वैसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्लोप का जो चेंज हो रहा वो इधर साइड ड्रास्टिकली हो सकता, उधर साइड स्लो भी हो सकता। भाई ये छोड़ दो प्रॉब्लम, मैं खाली डिस्कस कर, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली थोड़ा मतलब क्लियर नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दिया, बट कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। ओके, एनीवे कौन सा था वो प्रॉब्लम? ये a bus is moving with speed 10 meter per second on a straight line. A scooter is wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooter, is what with what speed should he chase the bus? बहुत easy है, देखो यहाँ पे बस की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ओके, नहीं रिलेटिव स्पीड देखना, स्कूटर इसकी व्हील है ना, Yes, v sir. माइनस 10 रिलेटिव वेलोसिटी होती किसकी? बस और स्कूटर इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बस। अब ही विशेस टू ओवरटेक इन हाउ मेनी सेकंड्स? 10 सेकंड्स ना, यानी 100 सेकंड्स, सॉरी 100 सेकंड्स ना। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स बाय 100 सेकंड्स, राइट। तो ये चलेगा, तो v इज इक्वल टू 20। समझ गए? इजी है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x, relative velocity, relative velocity is equal to rate of separation by time. Relative velocity is equal to नहीं हाँ, rate of separation, relative velocity is equal to rate of separation by time नहीं, relative velocity is equal to rate of separation। उसको इक्वेट कर लेना हाँ, rate of separation क्या रहता? Distance by time in which he wishes to remove that separation। ओके, और कभी सेपरेशन इंक्रीज भी होता अगर रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है या जो भी है, समझ गए ना, मतलब रिलेटिवली दूर जा रहा तो। खैर एनीवे, यहाँ पे करीब जा रहा ना तो सेपरेशन कम होता। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो, मैं अज़ान के बाद बोलता हूँ, अज़ान होने के बाद बोलता हूँ, करो। 42 एक्चुअली सेम प्रॉब्लम जो हम लोग करें ना, थोड़ा अलग स्टाइल में दिया।
ओके तो ये ऐसा है एक्चुअली, पावर -1 मतलब क्या, डिनोमिनेटर में है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं, dx by dt करो वेलोसिटी के लिए। तो क्या आता है देखो, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, कल बोला था। तो x की जगह कुछ और है तो कुछ और लिख लो, t+5 है तो t+5² लिख लो, माइनस लिख लो, पर चेन रूल लगाओ। चेन रूल लगाए भी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है, तो ठीक है चेन रूल। अगर वहां पे 2t+5 रहता तो 2 आता था, 3t+5 रहता था तो 3 आता था, समझ गए। t² + 5 रहता था तो 2t आता था, t² + 5t रहता था तो 2t+5 आता था, वॉट एवर। हाँ v क्यूब, वही जो हम लोग करें ना, अल्फा प्लस बीटा बोल के, कुछ वही प्रॉब्लम है। तो भाई देखो ये आ गया, v = क्या आया, -1/t+5² आ गया। अब क्या बोल रहा, एक्सेलरेशन बोल रहा ना, 3/2 आता भाई, क्यूब नहीं आता। हाँ, तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो dv/dt करो। dv/dt जब करते हैं, माइनस तो है यहाँ पे, छोड़ दो, ये t+5² है ना, तो -2 सामने आता, समझ गए। देखो x⁴n का n × x⁴n-1 ना, तो t+5 -2 -1 आता, राइट। दिस इज एक्चुअली माइनस ऑफ t+5² तो कुछ नहीं, -2 आ गया जा रहा, इंटू चेन रूल करे तो 1 ही आता, इट डजंट मैटर। तो a क्या आ गया बोलो, प्लस हो गया वो 2 × t+5, सॉरी हाँ, होल पावर -3 आया, करेक्ट। मगर यहाँ पे देखो क्या है, t+5² इज इक्वल टू, हाँ नहीं मतलब वेलोसिटी क्या डालते हैं वहां पे, वेलोसिटी t+5² को क्या डालते हैं। ओके मैं एक काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे, नहीं मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो a = 2 × t+5² -2 होल पावर 3/2, राइट। आई कैन राइट इट ना। तो यहाँ पे अंदर आप डाल दे सकते, क्या डाल सकते, -v डाल सकते, समझ गए। अब आप लोग समझ रहे होंगे रूट में माइनस कैसा आता, राइट। नहीं वो नहीं, ये 2 -v होल पावर 3/2। नहीं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं रहता ना, बट वी नीड नॉट वरी, यू नो व्हाई। यहाँ पे v खुद नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं डाल रहे आप, वेरिएबल डाल रहे, क्या डाल रहे, वेरिएबल डाल रहे। तो ऑब्वियसली फॉर पॉजिटिव वेलोसिटीज ये वैलिड नहीं रहता, पर नेगेटिव वेलोसिटीज तो वैलिड रहता ना, वेलोसिटीज नेगेटिव हो सकते ना। तो एनीवे v को तो प्रोपोर्शनल 3/2 है, समझ गए, वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल 3/2, क्लियर। ओके कौन सा था, 42 था वो, 43 देखो, a ball is dropped from a high rise platform at t = 0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown downward. After 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with velocity v. Two balls meet at 18 seconds. What is the value of v? बहुत easy है ये, खाली इक्वेशंस लिखना, पर नेगेटिव पॉजिटिव केयरफुल रहना, क्या रहना, नेगेटिव पॉजिटिव। पूछ रहा क्या इसमें, अच्छा वी पूछ रहा, ओके एनीवे चलो। नहीं वैसा नहीं, देखो जब भी दो चीजें रहते, एक बस एक आदमी, या दो कार, या बस को स्कूटर चेस कर रहा, या पुलिस इज चेजिंग थीफ, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते ना, तो दो चीजें लिखना, दो इक्वेशंस लिखना। पहले फर्स्ट जो पार्टिकल था या फर्स्ट बॉल था, उसके लिए मैं y1 लिखता हूँ, y1 = ड्रॉप करे ना, u0 था -12 gt², और -12 gt², करेक्ट। अच्छा बाद में सेकेंड बॉल जब ड्रॉप करे, कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप करे, और वेलोसिटी
इक्वल टू माइनस जी ना, नीचे के पूरे नेगेटिव लेते। अच्छा y2 जो ड्रॉप करे ना, सेकंड बॉल थ्रो करे, क्यों थ्रो करे? क्योंकि दोनों मीट करना है। दोनों मीट करना मतलब अगर खाली सेकंड वाला ड्रॉप कर देना कभी मीट नहीं होते, वो सेपरेशन उतना ही रहता, इनिशियली जितना रहता फाइनली उतना ही रहता। इसीलिए दूसरा वाला जोर से फेंके क्योंकि जाके ओवरटेक करना है। मगर कितनी देर के बाद फेंके? 6 सेकंड्स के बाद। तो अगर y1 के लिए टाइम t हो गया, समझ गए, पहले बॉल के लिए टाइम t हो गया, तो दूसरे बॉल के लिए टाइम t-6 लेते। क्या लेते? t-6। और उसकी भी वेलोसिटी नीचे है ना, तो इसलिए माइनस v इंटू t-6 माइनस हाफ जी t-6 होल स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते मालूम, दोनों पॉजिटिव लेके करते, चलता, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। क्यों? हर एक प्रॉब्लम में सोचना पड़ता, पॉजिटिव लेना दो नेगेटिव लेना। अगर ब्लाइंडली कर रहे हैं आप, नीचे के पूरे पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर के पूरे पॉजिटिव, तो आपको दिमाग कम लगाना पड़ता, टाइम बचता, कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है? और कभी पॉजिटिव ले रहे कभी नेगेटिव ले रहे, गलती चले गई करने में प्रॉब्लम, हाँ, चेक करने के लिए भी टाइम लगता, याद भी नहीं आता क्या लिए थे अपन, पॉजिटिव लेके करे थे नेगेटिव लेके करे थे बोल के, समझ गए? अगर हैबिट ये रख लिए कि ऊपर के पूरे पॉजिटिव लेता हूँ नीचे के पूरे नेगेटिव लेता हूँ, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है? ओके, तो ये दोनों इक्वल करना तो बहुत इजी है अभी। तो जी 10 बोल के दिया, 10 दिया ना, तो -5t² इज इक्वल टू माइनस v इंटू t-6 माइनस 5 इंटू t-6 होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस पूरे चले गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा, मगर दिस इज ए गुड हैबिट। ओके, तो बोलो 5t² इज इक्वल टू vt माइनस 6v। अच्छा, द मीट आफ्टर वो भी दिया ना, द मीट आफ्टर 18 सेकेंड्स वो भी दिया ना, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर लो। 5 इंटू 18² इज इक्वल टू v इंटू 18-6 प्लस 5 इंटू 18-6 होल स्क्वायर। समझ गए? तो आई थिंक यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, 18² माइनस 18-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू 12 आता, राइट? तो आई थिंक 18² मत करो क्योंकि कैंसिल हो जाता। ठीक है? 18² माइनस 18² माइनस 6² प्लस 2 इंटू 18 इंटू 6 इज इक्वल टू v इंटू 12। तो ये 18² चले गया। ठीक है? अब भी कुछ भी मत करो, हमेशा कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई लास्ट में करना हमेशा, क्योंकि बाद में डिवाइड करना पड़ता। तो 5 इंटू 2 इंटू 6 क्या होता? 12 होता। 12 इंटू 18 माइनस 36 है ना, ये 36 को 12 इंटू 3 लिखता हूँ। ठीक है? v इंटू 12, अब समझ में आया क्यों करा? 12 कैंसिल होता बोल के, तो 5 इंटू 18-3 इज इक्वल टू v। 18-3 बोला हम क्या है? 15। 15 इंटू 5 75, तो 75 होगा आंसर। ठीक है? क्लियर? ये 43 है। नेक्स्ट 44 का देखो। A boy is standing at the top of the tower at 20 meters height, drops a stone. Assuming g is equal to 10 meters per second, velocity with which it hits the ground. Under root 2h by g. Under root 2h by g. तो 2 into 20 by 10. नहीं सॉरी, टाइम नहीं, वेलोसिटी पूछ रहा, तो रूट 2gh, रूट 2gh 20 जाता आंसर। ओके, a body is moving with velocity 30 meters per second towards east. After 10 seconds, velocity becomes 40 meters per second north. Average acceleration. Average acceleration हमेशा v minus u by t रहता। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? नॉर्थ है ना, नॉर्थ रहा तो 40 j कैप लेता हूँ, इनिशियल ईस्ट था ना 30 i कैप, टोटल टाइम कितना? 10 सेकेंड्स, तो 4 माइनस 4 j कैप माइनस 3 i कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो 5 आता। क्लियर? नेक्स्ट ये प्रॉब्लम भी सेम है, x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, फाइंड द रिटार्डेशन। हाँ हाँ, when velocity becomes 0, when velocity becomes 0, ये भी करो, सेम है। हाँ, इजी है, करो।
तो v क्या है बोलो पहले? V equal to 12 minus 3D square. 12 minus 3d square. Velocity becomes 0 बोल रहा ना, तो t is equal to 4 seconds आया, 12 आ रहा सर रिटार्डेशन, नहीं 4 आया था seconds. t equal to 2 सेकंड आ रहा है, 2 सेकंड कैसा है? नहीं वो रूट आया था ना. अच्छा ओके ओके, प्लस और माइनस 2, ओके स्क्वायर है ना वहाँ पे, तो 2 सेकंड्स लेते t इक्वल टू, ठीक है. क्या पूछ रहा है उन्हें? रिटार्डेशन पूछ रहा ना, तो dv by dt क्या था? -60, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, -12 से -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है एक्सेलरेशन. 12 क्लियर, इजी है ना. मोशन ऑफ ये हो गया, एंड एक्सेलरेशन ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स. कुछ भी नहीं, v इक्वल टू u प्लस at करो. हाँ v इक्वल टू u प्लस at मगर ij रखना साथ में, समझ गए? तो देखो भाई कुछ नहीं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आता बोलो? 80, 3i कैप प्लस 2j कैप आता, तो इसको ऐड करो u प्लस 80 ना, 5i कैप प्लस 5j कैप आता, समझ गए? तो 5i कैप प्लस 5j कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहता? 5√2 हो गया. ओके ये करो. velocity of particle moving with constant acceleration at an instant is 10 meter per second. After 5 seconds of that instant, velocity of the particle is 20 meters per second. Velocity at 3 seconds before t naught. भाई कौन सा प्रॉब्लम है ये? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? कैसा मालूम? कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला. ओके तो हम लोग लिखेंगे, देखो पहले 10 मीटर पर सेकंड था, बाद में 20 मीटर पर सेकंड. दोनों के बीच में टाइम कितना दिया? 5 सेकंड दिया. तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरी सेकंड कितना इंक्रीज हो रहा? एवरी सेकंड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा ना, एवरी सेकंड. बात समझ में आई? देखो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा, 5 सेकंड में अगर 10 से बढ़ गया तो एवरी सेकंड कितना इंक्रीज हो रहा? 2 मीटर पर सेकंड हो रहा. तो पहले भी तो इतना ही हो रहा था होगा ना, तो 3 सेकंड्स एगो कितना रहता? 4 रहता, 4 रहता, क्योंकि 6 कम करना है यहाँ से, समझ गए? क्योंकि ये 3 सेकंड्स है, तो एवरी सेकंड 2 कम करना है ना, तो -3 × 2 करना, इधर से इधर जाने, तो 4 मीटर पर सेकंड. क्लियर? कहाँ है जी ये? A stone is dropped in well in which level of water is h below the top. If v is the velocity of sound, time after which the splash is heard. बहुत इजी है. स्टोन नीचे जाने के लिए टाइम √2h/g लगता, जाने के बाद साउंड ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करता, समझ गए? तो ऊपर ट्रैवल करने कितना टाइम लगता? हाइट h है और वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती ना साउंड की, एक्सीलरेट होके थोड़ी ना आता साउंड, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करे तो आ जाता. तो आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन. क्लियर? जाने के लिए √2h/g, आने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड ये. अच्छा ये देखो, a man walks 30 meters towards north, 20 meters towards east, and at last 30√2 meters towards southwest. Displacement from origin. बहुत इजी है. देखो 30 नॉर्थ गया ना, 30 आई कैप ले लेते, सॉरी 30 जे कैप ले लो, 30 जे कैप. क्या बोला गया? 20 मीटर्स ईस्ट, तो 20 आई कैप. बात समझ में आई? इंडिया का मैप दिमाग में रख लो. ईस्ट में आई कैप रहता, समझे? असम. वेस्ट में महाराष्ट्र, गुजरात. नॉर्थ पे कश्मीर, साउथ पे तमिलनाडु, समझ गए? तो नॉर्थ का जे कैप
ईस्ट का आई कैप। अब ये साउथ वेस्ट को जा रहा, साउथ वेस्ट में आई भी नेगेटिव रहता, जे भी नेगेटिव रहता, समझ में आया? साउथ वेस्ट में क्लियर? तो देखो 30√2 करता हूँ, माइनस आई माइनस जे करता हूँ, मगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर करने के लिए √2 से डिवाइड करना पड़ता है। देखो 30 मैग्नीट्यूड है, जे डायरेक्शन दे रहा उसका, 20 मैग्नीट्यूड है, आई डायरेक्शन दे रहा उसका। इसका मतलब डायरेक्शन जब मल्टीप्लाई करते हैं आप मैग्नीट्यूड से कुछ छेड़ना नहीं, इसका मतलब सिर्फ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है? तो आई कैप तो यूनिट वेक्टर है पहले से ही, जे कैप तो यूनिट वेक्टर है, यू नीड नॉट वरी। मगर जब मैं माइनस आई कैप माइनस जे कैप वो डायरेक्शन देने के लिए मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका खुद का मैग्नीट्यूड √2 रहता, क्योंकि √1² + 1², तो उसको यूनिट बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता। तो हो गया, ऐड करो आ जाता, आई के आई से करो, जे के जे से करो, तो ये √2 चलेगा, तो ये -30 आई कैप -30 जे कैप, 30 चलेगा, जे जे तो -10 आई कैप, खत्म खलास, समझ गए? क्लियर ना भाई? ओके। A stone is thrown upward with velocity u from the top of the tower, reaches ground with velocity 3u. तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा भाई। देखो ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, मगर मैं बोलता हूँ काइनेमेटिक्स से नहीं करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना है ऐसे प्रॉब्लम्स पूरे, ठीक है? तो देखो ऊपर जब फेंके, यू से फेंके, ऊपर यू से फेंके तो ऊपर गया कहीं, समझ गए? फिर ऊपर जाके नीचे आया, नीचे जब आया 3u से आया, इससे आया 3u से आया, बात समझ में आई? तो क्या पूछ रहा हूँ, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा ना? ओके, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा, तो जो ब्लू लाइन का लेवल है वो पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो 3u से आया ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती नीचे 3u से आया तो? काइनेटिक एनर्जी हाफ m 9 ½ mu² रहती ना। इधर काइनेटिक एनर्जी 9 × ½ mv² रहती ना नीचे इधर। अच्छा ये ब्लू लेवल पे क्या रहती काइनेटिक एनर्जी? ½ mu² रहती। बात समझ में आई? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ही है समझो ब्लू लेवल पे, नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती? 9 के ही रहती, 9 के ही। बात समझ में आई? ओके, यस सर, बात समझ में आई? मैं फिर से करता हूँ, ठहरो, ये प्रॉब्लम इधर जगह नहीं है। देखो ये प्रॉब्लम गौर से देखो, ऑनलाइन सुनाई दे रहा? ऑनलाइन है? Yes, sir. So just see carefully what I am doing. See, तो ये प्रॉब्लम दिया, ठीक है? ये लेवल से फेंके, ये कुछ टावर से ऊपर फेंके, विथ यू फेंके समझो, ठीक है? तो ऊपर जाता, ऊपर जाके फिर नीचे आता, तो नीचे आ गया फिर, ठीक है? ये नीचे आ गया, तो नीचे ग्राउंड पे जब आया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? 3u थी, राइट? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ½ m3u² थी, तो 9½ mu² थी, तो आई राइट इट एज 9k। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ½ mu² थी, राइट? तो यहाँ पे के ही थी, तो यहाँ पे 9k ही है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अगर 9k ही है काइनेटिक एनर्जी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 9k ही रहती ना? मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे है वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी रहती टॉप। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है यहाँ पे? ये लेवल पे
देखो 9 ke में से 9 ke में से 9 ke में से ke काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो यहाँ पे 8 ke रहती ना। तो ये PE1 PE टॉप है, ये PE किसकी हाइट पूछ रहा था हम? टावर की। तो ये PEH है हाईएस्ट पॉइंट, ये PE टावर है। बात समझ में आई? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता? mg h रहता ना। तो टावर का हाइट h है, समझो। क्या लिखते हैं यहाँ पे? 8K ही लिखते हैं। बात समझ में आई? तो mgh इज इक्वल टू 8K ही क्या है? हाफ mu स्क्वायर। क्लियर? mm कैंसिल हो गया, h क्या होता? 4u स्क्वायर बाय g। क्लियर? क्योंकि ये जाके 4 हो गया। क्लियर? 4u स्क्वायर बाय। बात समझ में है? अब देखो भाई, काइनेमेटिक्स भी कर सकते, लंबा चौड़ा आता, इक्वेशंस आते, क्योंकि 2 सेट ऑफ इक्वेशंस लिखना, फिर समझ गए 3 इक्वेशन आते, वेरिएबल्स आते, सॉल्व करना पड़ता, लंबा चौड़ा होता। देखो भाई, ये समझाने के लिए इतनी देर लग रही है, आप लोग करो, इजी रहती। देखो यहाँ पे, देखो फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाती बोल रहा, तो 9K ही हो जाती काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट जब था, जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 9K ही है ना। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ पे आता वापिस, तो 9K में से थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बन जाती। कितनी बन जाती? क्योंकि जाते वक्त अगर इधर K है तो आते वक्त भी तो K ही रहती। तो अगर 9K में से K काइनेटिक बन गई, तो पोटेंशियल कितनी है? 8K ही बच गई। 8K ही बच गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 8K ही है। इसकी हाइट हम लोग h लेंगे, इसकी हाइट h लेंगे, इसकी कैपिटल H लेंगे। जो नहीं पूछ रहा आपने को हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अगर पूछा तो वो भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है? 9 स्क्वायर बाई 2g रहता हाईएस्ट पॉइंट हाइट। ठीक है? तो 8K ही पूछ रहा, मगर K ही यहाँ पे ऑलरेडी है ना आपके पास, हाफ mu स्क्वायर, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, इक्वल टू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको h आ गया। क्लियर? हाईएस्ट पॉइंट पूछा, अगर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन मोल के पूछा, तो हम लोग mg कैपिटल H लिखते इज इक्वल टू 9K ही लिखते। तो इंप्लाइज mg कैपिटल H इज इक्वल टू 9 इंटू हाफ mu स्क्वायर। mm कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 9u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? ओके, एनीवे वो पूछा नहीं ना, तो इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, the engine of train passes an electric pole. अच्छा, electric pole with velocity u, with velocity u. The last compartment of the train crosses the same pole with a velocity v. Then the velocity with which the midpoint of train passes the pole. बहुत difficult है क्वेश्चन होगा, क्योंकि obviously थोड़ा fancy वही दिख रहा। समझ गए? u तो नहीं रहता, v तो नहीं रहता, u प्लस v बाई 2 भी हो सकता, नहीं बोल सकते, कभी कभी कंफ्यूज करता भाई। वो ना बोल के एक फैंसी ऑप्शन देता, बच्चे टेम्प्ट होके डाल देते, बस सिंपल रहता ऑप्शन। ठीक है? क्लियर? सर एनीवे देखेंगे, मगर ये उतना सिंपल नहीं है, करना पड़ो, विदाउट सॉल्विंग नहीं कर सकते। ओके, ऑनलाइन सुनाई दे रहा? ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, सो देखो, इंजन ऑफ ए ट्रेन, ओके, मैं एक ट्रेन के जैसा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रेन है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पोल है, ये जो पोल है, पोल को जो है ना, ओके, यहाँ पे ऐसा पोल ड्रॉ कर लेंगे, ये इंजन है, ठीक है? तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये पोल है, ठीक है? थोड़ी देर के बाद ट्रेन किधर जाती? पोल को क्रॉस कर देती, लास्ट कंपार्टमेंट आ जाती, ठीक है? तो ऐसा है सिचुएशन। जब पहला जो ये क्रॉस कर रहा था, क्या क्रॉस कर रहा था? पहला कंपार्टमेंट, इंजन क्रॉस कर रहा था जब वेलोसिटी यू थी, मतलब इसकी ये टाइम पे वेलोसिटी यू थी, ये टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। बात समझ में आई?
ओके, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहती पूछ रहा, मिड पॉइंट की वेलोसिटी मतलब मिड पॉइंट, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब जब मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा था, मिडिल वाला, तो ये लास्ट में आता, बीच में ये भी आता ना सिचुएशन, मिडिल वाला कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, अननोन, क्या लेंगे भाई, यूवी तो नहीं ले सकते, क्या लेंगे, डब्ल्यू लेंगे। ओके, ये डब्ल्यू है, ठीक है। अच्छा ओके, ये मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जीरो है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो ले लेंगे। यहाँ पे सॉरी जीरो ले लेता हूँ, खाली क्या ले लेता हूँ, जीरो। यहाँ पे एस बाई टू है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ऐसे, बात समझ में आई। अब दो इक्वेशंस लिखो, एक फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो क्या था बोलो, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस बाई टू, ठीक है। और एक क्या लिखेंगे, बोलो, वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू, यहां से लेके यहां तक भी एस बाई टू ही है, समझ गए। मतलब सेकंड सिचुएशन से थर्ड सिचुएशन के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट एस बाई टू है। तो इनफैक्ट दोनों को इक्वेट कर लेना, क्योंकि ये दो इक्वल दिख रहे हैं। तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इम्प्लाइज 2w स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, समझ गए। तो आ गया आंसर, यही से समझ गए। तो ये भी हो गया, ये क्या था भाई आंसर, 4u स्क्वायर बाई। नेक्स्ट, a ball is thrown upward with velocity 100 meters per second, it will reach ground after, जल्दी बोलो आंसर, to u by g ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बोलो आंसर क्या है, 20 सेकंड्स ना, to u by g ना भाई। हाँ नेक्स्ट, a person is moving on a circle of radius r with constant speed v, change in velocity when it moves from point a to point b, अरे 40 डिग्री कर दे, वाह। अच्छा आंसर भी उसमें ही दिया, वी नीड नॉट वरी। तो देखो भाई, जो इनिशियल स्पीड रहती इधर, कहाँ गया, इनिशियल स्पीड रहती इधर रहती, राइट, जो फाइनल स्पीड रहती इधर रहती। तो अगर रेडियाई के बीच में एंगल 40 है, तो ये वेक्टर्स के बीच में भी एंगल 40 रहता, राइट। मगर v सेम रहती ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा। तो दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो डिफरेंस क्या आता, 2v sin थीटा बाई 2, कल करा। सम क्या आता, 2v cos थीटा बाई 2, डिफरेंस क्या आता, 2v sin थीटा बाई 2। तो 2v sin थीटा बाई 2 मतलब आंसर बोलो, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। देखो भाई, दो वेक्टर्स है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का a तो उनका सम 2a cos थीटा बाई 2 आता, डिफरेंस क्या आता, 2a sin थीटा बाई 2। Okay, a stone falls from balloon that is descending at a uniform rate of 12 meters per second. The displacement of stone from the point of release after 10 seconds. तो एक बैलून डिसेंड हो रहा था 12 मीटर पर सेकंड से, उससे गिर गया स्टोन, मतलब फ्रीली फॉलिंग हो गया। ये 12 मीटर पर सेकंड फ्रीली फॉलिंग नहीं है, क्या है ये, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा, जीरो एक्सीलरेशन है इसका, ठीक है। तो एनीवे ये प्रॉब्लम इजी है, क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 10 सेकंड्स बोल रहा ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू माइनस 12 ले रहा हूँ, क्योंकि डिसेंड हो रहा था और एक्सेलरेशन में नीचे रहता 10 इंटू 10, समझ गए। 9.8 लेंगे, क्या पूछ रहा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, तो s इज इक्वल टू प्लस हाफ a t स्क्वायर ना, तो u माइनस 12 t 10 माइनस हाफ
10 स्क्वायर क्या था, -120 -500, तो -620 आया ना, तो 610 है आंसर। क्यों मालूम, वो 9.8 लिया, वो 9.8 लिया, ठीक है, तो 490 आता है, ठीक है, तो आंसर 610 है। क्लियर? नहीं, डिसेंट मतलब नीचे था, बैलून नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए यू भी नेगेटिव लिया, ए भी नेगेटिव लिया, तो अपना एस भी नेगेटिव आता, ठीक है, मगर वो नहीं दे रहा नेगेटिव, खाली जो है ना मैग्नीट्यूड दे रहा। ओके, मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विथ वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी v, ड्यू ईस्ट, ही वॉक्स फॉर सम टाइम, फॉर सेम टाइम t with velocity ड्यू नॉट, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं, तो एवरेज वेलोसिटी नहीं भाई, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, करेक्ट। तो इन इधर v इंटू टी गया, इधर v इंटू टी गया, तो इधर से इधर कितना जाता, √2 इंटू √2 vt जाता, राइट, मगर टाइम टोटल 2t होता ना, नहीं v बाई √2, समझ में आया, क्योंकि dt चले गया, v बाई √2 आता, टोटल टाइम 2t होता, t नहीं होता, क्योंकि t इधर और t इधर, टोटल टाइम। ए पार्टिकल इज मूविंग, हेलो, ए पार्टिकल इज मूविंग, करो, अच्छा अच्छा, मुबारक, कौन सा कॉलेज में, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग हुई ना अभी, हाँ, थोड़ा स्लाइड भी होता है एक दो कॉलेज, तो हाँ, वही वही वो होता, आपको एक दो कॉलेज स्लाइड हो सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वही वही वही, इंशाल्लाह हुई तो बोलो मेरे को, स्लाइड हुई तो बोलो। ओके ओके, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह हाफिज़। सीट्स मिल गए, सीट्स आ गए, मतलब अलॉट हो गए मेडिकल के, स्वास्थ्य मैसेजेस आ रहे हैं जब से। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो भाई जल्दी, 10th वाला, क्या बोले, अरे जरा छींच गया कटा, 570 को धक्का नहीं मिला, के नहीं भेज कोई। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करो भाई। A particle is moving along a circular path of radius 5 meters with uniform speed 5 meters per second. What will be the average acceleration when particle completes half revolution? Half revolution बहुत easy है भाई, देखो, अरे भाई क्वेश्चन कॉपी करेंगे, कहाँ है वो, डिलीट करना, ये मतलब साइट पे आया रिजल्ट या मेल भेजता, हाँ मतलब SMS आता, साइट पे भी आता, अच्छा, लॉगिन करना पड़ता है। Okay, a particle is moving on a circular path of radius 5 meters with 5 meter per second. What will be the average acceleration? बोल रहा, average acceleration कैसा निकालते हैं, final velocity minus initial velocity, तो ये initial velocity है, ये
फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, दिख रहा कैसा? 5i कैप माइनस 5i कैप अगर करे तो 10i कैप होता, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है बोलो? टाइम जो है ना, इधर से इधर तक ट्रैवल करने का टाइम है, इधर से इधर तक। तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज पाई आर बाई वी। तो पाई इंटू आर, आर क्या है भाई? 5 मीटर बाई 5, पाई आता तो पाई से डिवाइड कर दो, यही है आंसर। तो 10 बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर? अच्छा, ये जबरदस्त प्रॉब्लम आ गई। कैसे है आप क्लास A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. मतलब ज्यादा पी के नहीं है, समझ गए? ज्यादा पी के रहे तो क्या होता मालूम? 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड लेता, समझ गए? क्लियर? मतलब एवरेज है, एवरेज ड्रंकर्ड है, समझ गए? 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड चलता, उतना भी खराब नहीं है सिचुएशन इसका, ठीक है। तो इसका मतलब एटलीस्ट पीछे तो नहीं जा रहा इन्हें। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था मालूम? भाई कौन है? उमैमा कौन है? थोड़ा म्यूट करो। ओके, चलो भाई, बड़ा ही है प्रॉब्लम, करना पड़ता तो पिटविट का है। तो देखो भाई, ये फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता, पहली बात लॉजिकल है, ठीक है। मतलब अपने को काइनेमेटिक्स इक्वेशंस तो नहीं लगते इसमें, ठीक है। तो थोड़ा छोटा लॉजिक रहता है इसमें कि ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग बोल रहा, ठीक है। तो 11 मीटर आगे जो है ना, क्या है? 11 मीटर आगे पिट है, 11 मीटर आगे पिट है, तो इसमें जाके गिरता है, ठीक है। कितने सेकंड्स के बाद गिरता वो है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, ओवरऑल 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड ले रहा ना, 8 सेकंड्स में 2 मीटर्स आगे जाता, क्लियर? 8 सेकंड्स में 2 मीटर आगे जाता। नहीं, 8 सेकंड में ओवरऑल 2 मीटर आगे जाता, ठीक है। मगर थोड़ा जो है ना, अब लॉजिक लगाना पड़ता। तो पहले 8 सेकंड में 2 मीटर आगे जाता, ठीक है। फिर 8 सेकंड में फिर 2 मीटर आगे जाता, 4 मीटर हो गए, फिर 2 मीटर, 6 हो गए। वैसा कितने होते भाई बोलो? ऐसे में करेगा उसको आधे में गिर जाता, वापस आने का मौका नहीं मिलता। हाँ, वही से प्रॉब्लम है। तो भाई बोलो कितने 2 मीटर जाता? 1 2 3 4 5 2 मीटर चले गया ना, 5 2 मीटर चले गया तो 10 मीटर चले गया, मतलब पिट रीच नहीं करा। अब नेक्स्ट जर्नी जो है उसकी, जो नेक्स्ट साइकिल है उसका, वो साइकिल में गिर रहा। तो अब मैं पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं करता हूँ 2 मीटर, क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जाते वक्त ही गिर जाता। अच्छा, यहाँ पे कितने 8 सेकंड्स हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, कितने? 1 2 3 4 5 40 सेकंड्स हो गए। मगर अब 1 ही मीटर आगे है ना, तो आगे जाते वक्त गिर जाता, +1, समझ गए? 40 सेकंड प्लस 1 सेकंड, तो आंसर क्या है? अरे नहीं है, each step is 1 meter long ना, 1 seconds, तो each step is 1 meter long and takes 1 second. Okay, there is a pit on road 11 meter away from the starting point, then the drunkard will fall into the pit after. नहीं होता, ठहरो, एक्चुअली ठहरो,
ये नहीं हुआ समझो। कितने मीटर चले गया? 8 मीटर चले गया। अब 3 स्टेप में गिर जाता ना जी, अब 3 स्टेप में गिर जाता, देखो 1 2 3, 3 स्टेप में गिर जाता। तो ये क्या है भाई बोलो? नहीं नहीं, ये कितना है? 8 8 8 24 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स, राइट? है 27, 8 4 द 32 ना जी, 32। भाई आप लोग बोलो। वाह क्या बात है। 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 3 स्टेप लेता, 24 होते, 4 डाल। अरे 5 स्टेप लेता भाई, 5 स्टेप आगे लेता। 3 साइकिल्स करता पहले 24 के, फिर 5 स्टेप आगे लेता। नहीं नहीं, 5 स्टेप आगे लेता हूँ, 3 स्टेप नहीं, 5 स्टेप। तो 3 2 2 2 ले लिया तो कितने? 6 मीटर हो गए। हाँ, अब 5 स्टेप में आगे गिर जाता ना, 3 स्टेप आगे नहीं करता। देखो 3 साइकिल खत्म करता, 3 साइकिल में 6 मीटर चले गया, 6 मीटर जाने के बाद आगे की साइकिल में आगे जाते गिर जाता। ठीक है, तो 8 + 8 + 8 24 + 5 29। समझ गए? ओके, एनीवे कहाँ गया वो? कौन सा प्रॉब्लम था वो? A stone is dropped from a height h, simultaneously another stone is thrown up from ground which reaches a height 4h. The two stones will cross after time. दिख रहा है क्वेश्चन? किसके जैसा? तो ये थोड़ा करना पड़ता। ओके, एक स्टोन हाइट h से नीचे फेंक दिया, ठीक है? ये हाइट क्या है? h से नीचे फेंक दिया, ठीक है? Another stone is projected from bottom such that it will reach a height 4h. समझ में आया? They will meet after बोल रहा ना? Two stones will cross each other after a time. Okay, anyway, तो इसकी u क्या लेते बोलो? 4h वाले की u क्या लेते? u² / 2g होता ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 4h होता। तो ये u2 बोल के लेता हूं, तो u2 क्या होता बोलो? 8gh, 8gh का रूट होता, ठीक है? मतलब 8gh से फेंके नीचे वाला, ऊपर का ड्रॉप कर दिए, ठीक है? ओके ओके, अगर दोनों मीट कर रहे ना तो दोनों जो डिस्टेंस ट्रैवल करे वो मिलाए तो h होना, राइट? अगर दोनों मीट हो रहे हैं एक पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होना? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होना? h होना ना? तो देखो मैं क्या करता हूं अभी केयरफुली, वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता इन टाइम t? हाफ gt² ट्रैवल करता, राइट? तो हाफ gt² नीचे आता हूं, एक्चुअली -हाफ gt² है मगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, हाफ gt², करेक्ट? जो ऊपर जा रहा है कितना ट्रैवल करता? ut - हाफ gt², राइट? ठीक है, बराबर। प्लस u क्या है? -हाफ gt², अग्रीड? ये मिला के h होता, समझ में आया?
ये जो है ना वो नीचे आ रहा सो, ठीक है, ये जो है ना वो ऊपर जा रहा सो, ठीक है। ये ऊपर जा रहा सो, दो मिला के h हो रहा ना, तो फॉर्चुनेटली क्या हो रहा मालूम, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कट जाता, तो क्या बच गया, तो t इज इक्वल टू रूट h बाई 8g, रूट h बाई 8g। मैं कैपिटल H लिया, स्मॉल h लिया, ठीक है। ओके क्लियर। A body moves along a curved path for a quarter circle. Calculate the ratio of distance and displacement. क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करो, आ जाता कुछ नहीं, √2r रहता क्या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 90 डिग्री ऐसा आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता, तो √r रहता ना उसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी √r नहीं r√2 रहता ना, तो वो r√2 रहता, और क्वार्टर सर्कमफ्रेंस क्या होता πr/2। तो आई थिंक आंसर दिख रहा है आप लोगों को, क्या है डिस्टेंस, क्या है πr/2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, हाँ r√2। तो r चले गया, ये 22/7 जाके 11/7 होता, 11/7 क्या, कौन सा फोर्थ ऑप्शन आता, 11√2/7 थर्ड ऑप्शन आता। पहले क्या बोला, डिस्प्लेस, एक मिनट, पहले क्या बोला, डिस्टेंस बोला ना, डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं पाई लिख देता हूँ पहले, देखो तो क्या आता, π/2√2 आता, पाई को 22/7 लिख सकते, इंटू 2√2 करो, 2 जाके 11, तो क्या आता 11/7√2, थर्ड ऑप्शन ही जाता, देखो क्लियर। भाई ये ग्राफ दिया, क्या दिया है ग्राफ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और थोड़े पैरामीटर्स दे दिया, क्या दे दिया 4600 900 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा दे दिया, और 0 एंड 0.6 दिया ना। तो ये इक्वेशन मतलब ये चीज को देख के आप इक्वेशन लिख सकते, क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता ना, ठीक है मैं करता हूँ, ये देखो भाई बोलो, तो देखो भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो बोलो भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखे तो क्या आता, बोलो। तो y की जगह v स्क्वायर आता, x की जगह क्या आता, s आता, मगर किलोमीटर में दिया तो मीटर में दिया, तो क्या करना है उसको, स्लोप नेगेटिव है, खैर एनीवे c क्या है 4600, ओके वो भी किलोमीटर पर आवर में दिया, तो अपने को टेंशन नहीं है। तो स्लोप क्या होता बोलो, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, राइट, y2 900 है, माइनस y1 4600 है, x2 0.6 माइनस 0, तो भाई बोलो क्या था, 900 निकाले तो क्या आता 4600 में से 50, नहीं 3700 आता है, राइट, 3700 बाई 0.6 मतलब 37,000/6 आता है, राइट, रहने देंगे इसी, ओके तो माइनस आता, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता बोलो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 37,000/6, 4600, खलास, क्या करना,
एक्सेलरेशन क्या होता? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ना? अरे बाप रे, कुछ भी नहीं भाई, ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर है। समझ गए? समझ गए? और एस क्या है? 0.6। अरे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s करे तो आ जाता। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 900 माइनस 4600 बाई 2s, 2 इंटू 0.6। ये सब जरूरत नहीं, मैं देखा नहीं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई क्या था, बोलो जल्दी बोलो आंसर। 37 आया था वो, माइनस 3700 बाय, और 37,000 बाय 12, 12 3 are 36 राइट? Fourth option. -3 आ गया। तो देखो आंसर वही है क्या? पॉइंट समथिंग आता। Acceleration is defined as rate of change of velocity. Unit of rate of change of acceleration is, कुछ भी नहीं, और एक सेकंड डिवाइड करो, मीटर पर सेकंड क्यूब। एक्चुअली जर्क बोलते, ठीक है। और क्या क्या की रहता, और एक बार डेरिवेटिव निकाला तो क्या किया था, जर्क के बाद क्या आता, क्या क्या किया था। समझ गए? जरूरत नहीं याद रखने की। कहाँ है विकिपीडिया खुला? देखो, पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जर्क, जर्क का स्नैप, स्नैप का क्रैकल, क्रैकल का पॉप। ऐसी टाइम पास के लिए रखे ना। समझ गए? तो अपने को खाली 3 इंपॉर्टेंट है, क्या? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस। हाँ हाँ वैसा आता, सेकंड का पावर बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। क्लियर? ओके। 3 पार्टिकल्स पी क्यू आर, कहाँ है भाई पी क्यू आर? 3 पार्टिकल्स पी क्यू आर दिख रहे हैं? पी क्यू आर मेरे को तो 2 ही दिख रहे हैं डॉट्स। अच्छा अच्छा, वो जहाँ एरो है वही है शायद पार्टिकल। तो P एक एरो पे है, Q एक एरो पे है, R एक एरो पे है, ठीक है। आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए, अच्छा वो पॉइंट से निकल के आ रहे तीनों, ठीक है। मूव अलोंग डिफरेंट पाथ टू रीच बी। ओके ओके ओके, समझ गए। ए से स्टार्ट होके Q जो है ना ये पाथ ले रहा, Q जो है ना ये पाथ ले रहा, P जो है ना ऐसा बड़ा गोल फिर के आ रहा सर्कल पे, R नीचे वाला पाथ ले रहा, ठीक है। ओके देन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक मिनट, एक मिनट। कौन सा प्रॉब्लम था? उधर वाटर है क्या? देखो, भाई ये प्रॉब्लम देखो। A person walks up a tall escalator in 90 seconds. When standing on the same, now moving, he is carried in 60. समझ गए? मतलब escalator पे खाली खड़ा हो गया तो 60 पे जाता। तो अगर उन escalator भी मूव हो रहा और उस पे वॉक भी कर रहा तो कितने टाइम में जाता? वॉक भी कर रहा और मूव भी हो रहा तो कितने सेकंड्स में जाता? तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। जब एस्केलेटर पे जाता तो उसकी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर रहता, जब चल के जाता तो उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन रहती। जब दोनों भी काम कर रहे तो वेलोसिटी ऐड हो जाती दोनों की, राइट? तो पहले T1 इज इक्वल टू, बोलो, डिस्टेंस D है बाय 90, T2 नहीं V2 ये V मैन है ना पहले, क्योंकि बाद में V एस्केलेटर कितना D बाय 60। अब अपने को क्या फाइंड करना है? V मैन प्लस VE इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी, V नेट आता ना। तो अब मेरे को T फाइंड करना है, T इज इक्वल टू D बाय V नेट। समझ गए? मगर V नेट कैसा फाइंड करेंगे हम लोग? D बाय 90 प्लस D बाय 60, समझ गए? तो T इज इक्वल टू D बाय 90 प्लस D बाय 60। तो D बाहर आ जाता कॉमन, क्यों? क्योंकि नीचे भी है ऊपर भी है। भाई बोलो क्या आता? T इज इक्वल टू D 1 आ जाता, नीचे भी D कॉमन आ गया तो 1 बाय 90 प्लस 1 बाय 60, D कैंसिल हो गया। तो आंसर इज 90 इंटू 60 बाय 90 प्लस 60। तो 90 इंटू 60 बाय कैसा? 90 प्लस 60 कितना? 150। कौन से एलिमिनेट? थर्टी सिक्स। क्या बोले? ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कैसा? लॉजिक से नहीं कर सकते, कहीं क्यों बोले? तो 90 दिया 60 दिया ना, तो ऑब्वियसली 60 से कम लगता टाइम, तो 60 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिया 72। 36 भी दिया, 27 भी दिया। समझ गए? नहीं वैसा नहीं कर सकते, वो कभी रॉन्ग जाता हो। हाँ, एक ऑप्शन ही अगर 60 से कम दिया, बाकी के 3 60 से ज्यादा दिया तो करने की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि लॉजिकली वही रहता। मगर यहाँ पे एक ही ज्यादा दिया, बाकी के कम दिया, तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ता। ठीक है? ओके, कहाँ गया जी वो? ये 3π/4 था, ये क्या था? 36। A train accelerates from rest at constant rate alpha for a distance x1 and time d1. After that, it retards at constant rate beta for a distance x2 and time t2. Then it comes to rest. Which of the following is true? कितने की ऑप्शन दिया? तो ये प्रॉब्लम कैसा करना मालूम? ग्राफिकली करना, ठीक है? ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मुश्किल होता। ठीक है? तो देखो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अल्फा से एक्सीलरेट करा, डिस्टेंस x1 लिया, टाइम d1 लिया, फिर रिटार्ड कर दिया बीटा से।
तो मैं किसका टाइम ग्राफ डालता हूँ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ डालता हूँ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और रिटार्ड भी कांस्टेंट से कर रहा है, तो स्लोप जो है ना कांस्टेंट रहता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, स्ट्रेट लाइन, समझ गए? इसका स्लोप अल्फा, इसका स्लोप बीटा, और ये जो टाइम है ये t1 है, ये टाइम t2 है, समझ गए? और यहाँ पे कितना ट्रेवल करा? x1 ट्रेवल करा, तो एरिया ये x1 होता, समझ गए? ये एरिया x1 होता, एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया x2 होता, समझ गए? ये t1 t2 क्या होता? ये होता, ये t2 होता, और ये t1 होता। बात समझ में आई? और ऑब्वियसली ये कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करा ना? नहीं, कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करा ना ये, ठीक है? वो ये रहती v max। क्लियर? मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ ऐसा रहती। क्लियर? अब मेरे को ये बोलो कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड x1 एंड x2? देखेंगे। तो देखो स्लोप क्या होता? v max बाय t1 होता स्लोप, ये अल्फा होता, समझ गए? y2 माइनस y1, देखो भाई ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, तो स्लोप एक्सेलरेशन है ना, तो v max बाय t1 स्लोप आता अल्फा आ गया। क्लियर? इसका स्लोप क्या आता? v max बाय t2 आता, नेगेटिव आता मगर फिर भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, v max बाय t2 इज इक्वल टू बीटा। आ गया? तो यहाँ पे देखो, नहीं, प्रोपोर्शनलिटी क्या है? अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू नहीं, t2 बाय t1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, t2 बाय। अच्छा x1 कैसा आता? x1 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, देखो, तो x1 इज इक्वल टू, बोलो भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? t1 इंटू वी मैक्स। x2 क्या है? हाफ इंटू वी मैक्स, समझ गए? अब मेरे को बोलो x1 बाय x2 क्या होता? t1 बाय t2। तो t1 बाय t2 देखो क्या है यहाँ पे? x2 बाय x1। तो देखो भाई कौन सा है ऑप्शन? अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू x2 बाय x1, तो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू x1 बाय x2, सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आई? चेक कर लो कौन सा है, ठीक है? अगर ये इक्वेशन डाल के करे ना सुबह हो जाती। सही बोल रहे हो, बहुत बड़ा आता। ग्राफ डाले, ग्राफ में मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता, और एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता? डिस्प्लेसमेंट देता। तो हम लोग सिंपल देख लिया, ट्रायंगल का एरिया मालूम सबको, स्लोप का फॉर्मूला मालूम सबको, ठीक है? तो कर दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अल्फा बाय बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t1 बाय t2, और अल्फा बाय बीटा इज और t1 बाय t2 आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 एंड x3। आ गया? तो ऑब्वियसली ये रिलेशन आ गया, कर दिया। क्लियर? ओके। A car runs with constant speed on circular। कौन सा? टाइम जितना बड़ा क्या? फिर से बोलो। टाइम और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। कैसा मालूम? टाइम जितना बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ता है। Accelerates from rest है ना, with constant acceleration alpha, and then it retards at constant rate beta। समझ गए? अच्छा, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या है बोले तो, ये पहले एक्सेलरेट करा फिर रिटार्ड करा, ठीक है? एक्सेलरेशन के टाइम पे बोल दे सकते हैं, क्योंकि s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर होता,
तो ऑब्वियसली S1 by S2 is equal to A1 by, मगर वैसा नहीं है ये। देखो एक्सेलरेट करते वक्त अल्फा है, रिटार्ड करते वक्त बीटा है। एक्सेलरेट करने का जो टाइम है वो T1 है, रिटार्ड करने का जो टाइम है वो T2 है। देखो ये दो अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, एक ही पार्टिकल, पहले एक्सेलरेट कर रहा फिर रिटार्ड कर, समझ गए? हाँ चलो भाई, पहला पार्टिकल एक्चुअली अगर आप तुम जो बोल रहे फर्स्ट पार्टिकल का अल्फा है दूसरे पार्टिकल का बीटा है बोल के जो बोल रहे ना तुम, मगर अलग ही है सिचुएशन, वो तुम समझ रहे नहीं। थर्ड इसका बीटा बाय अल्फा का नहीं बरो, खाली हर एक सिचुएशन में बरो कि x1 by t1 equal to t1 by t2 होता रहता है। नहीं रहता, क्यों बोलूं? कैसा कैसा बोल रहे तुम? टाइम जितना ज्यादा लगा डिस्टेंस एक्चुअली टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल रहता, तुम जो बोल रहे हो लॉजिक, टी से नहीं रहता, टी स्क्वायर से रहता। तुम जो लॉजिक लगा रहे ना वो एक्चुअली टी स्क्वायर से रहता, क्योंकि s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आता, वो नहीं है प्रॉब्लम। ये तुम समझो, एक पार्टिकल पहले एक्सेलरेट कर रहा फिर रिटार्ड कर रहा मैक्सिमम वेलोसिटी जाके, तो कंप्लीटली डिफरेंट है सिचुएशन ये। तो ये ग्राफिकली कर सकते हैं, तुम जो बोल रहे दैट इज डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम करो भाई। A car runs at constant speed on a circular track of radius 10 meters. It takes 6.28 seconds to do each lap. मतलब टोटल राउंड मारने के लिए 6.28 seconds ले रहा। The average speed and average velocity. Average velocity तो जीरो रहता, ठीक है? Average speed क्या होती? 2 pi r by t. 2 pi r क्या होता? pi into r. r क्या है? 10 by 2 pi से वो 6.28 ये चलेगा 10, तो बेकार क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग along x axis is given by this. The distance traveled by particle between 0 and 2 seconds. कैसा करते? केयरफुली करना है, ये देखने में इजी दिख रहा मगर केयरफुली करना। देखो ये प्रॉब्लम में डिस्टेंस ट्रैवल पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं खाली क्या करता था? बोलो भाई क्या करता था? सब्स्टिट्यूट करे तो आ जाता इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। मगर यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 + 8t - 4t स्क्वायर है, राइट? मेरे को एक चीज मालूम करना है, यहाँ पे रुकता क्या बीच में, तो v इज इक्वल टू dx by dt करे तो 8 - 8t आता, तो इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रुकता, मतलब वहां तक आगे जाता फिर पीछे आता, ठीक है? तो मैं दो पार्ट्स में करता हूँ, ये 1 सेकंड तक क्या है देखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो 0 पे क्या है पोजीशन? x ऑफ 0, बोलो जल्दी बोलो। 2 मीटर है, x ऑफ 1 क्या होता? हाँ क्या था? 2 + 8 - 4 क्या था? 2 + 8 10 - 4 6 मीटर, तो 2 मीटर से 6 मीटर को गया, ठीक है? फिर वहां पे वापस आ रहा, क्या है? 2 सेकंड्स पे कहा था बोलो? 2 डालो, 16 + 2 18, 18 - 16 2 आता, वापस 2 मीटर पे आ गया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखे तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट देखे तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट बोला तो आगे कितना गया? 4 मीटर गया, पीछे कितना आया? 4 मीटर आया, तो टोटल नहीं 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल। ये दोनों ऐड करना, समझ गए? ये दोनों ऐड करना। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करे तो 0 आता, डिस्टेंस ट्रैवल कैसा फाइंड करे? मैं पहले फाइंड करा क्या रुकता, कब रुकता? वेलोसिटी जब 0 होती, तो 1 सेकंड आया मेरे को, तो 0 से 1 तक कितना ट्रैवल करा देखा, तो कितना आया? 4 आया, क्योंकि 2 से 6 तक 4 है, फिर वापस 6 से 2 को आ रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 0 मीटर आ गया समझो यहाँ पे, तो ये 4 आता था, ये 6 आता था, 6 + 4 10 आता था, समझ गए? यहाँ पे सिमेट्रिक है सिचुएशन, ओके क्लियर? तो आंसर में 0 भी दिया,
जल्दी में डाल लेते, मगर वो वर्ड है, ये वर्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोला तो 0, मगर डिस्टेंस पूछा तो 8। क्लियर? कौन सा था? 20। नेक्स्ट, पार्टिकल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी v1। अरे ये कल करे थे नहीं। इन एयर इट टेक्स टाइम t1 इन अपवर्ड जर्नी, t2 इन डाउनवर्ड जर्नी। अरे ब्रैकेट में ग्रेटर देन दे दिया हमने, t1। ओके ओके, रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट विथ v2, देन कल बोला था मैं इसका भी, v2 इज लेस देन v1 बोल के, v2 इज लेस देन v1। क्यों बोला? एनर्जी लॉस होता, जाके आया ना, एयर ड्रैग रहा तो एनर्जी लॉस होता, तो जो काइनेटिक एनर्जी से जाते वक्त गया था वो आते वक्त नहीं आता, बोला था। आंसर यही दिया क्या? देखो देखो, नहीं नहीं पीछे वही दिया ना। ओके, नेक्स्ट, ए जेट एयर प्लेन, जेट एयर प्लेन Sir, ट्रैवलिंग विथ, ओके एनीवे, ये बाकी के ट्राई करो आप लोग। कितने हैं और बच के क्रिटिकल में? भाई पीछे लास्ट में आंसर में देखो, क्रिटिकल कौन सा था? ये है क्रिटिकल के सेकंड वाले। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? नहीं, असर्शन रीजन छोड़ दो, नहीं करना है अपने को। कितने करें अपन? 21 करें। बाकी के ट्राई करो भाई आप लोग। नेक्स्ट वीक क्या करेंगे अपन? प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ये आप लोग कर लेना। मैं बहुत सारे कर लिया, पूरे मॉडल्स कवर हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। थियरी जल्दी जल्दी कर देता हूँ। पहले दिन कौन से दिन? थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे फिर ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे ये मटेरियल में से, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो करेंगे कंटिन्यू ऑर्गेनिक का, ठीक है। और ऑर्गेनिक करके फिजिकल स्टार्ट करना है ऐसे, ठीक है। फिजिकल इजी रहता, रीजन क्या है फिजिकल इजी रहने का? याद करने का ज्यादा नहीं रहता, ऑर्गेनिक में बहुत चीजें याद रखना रहता, बहुत ज्यादा है सिलेबस। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑर्गेनिक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स। और ऑर्गेनिक के लिए जरा वो बुक्स खरीद के स्टार्ट करो, MS चौहान, ठीक है। ओके।